कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री उस्मान मनाटी, हमारे प्रधान अध्यापक, उद्घाटक श्री अशरफ आलुंगल सर, प्रधानाध्यापक GVHSS अडिमाली इडुक्की, और मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी के मशहूर साहित्यकार प्रेमचंद का जन्मदिन है। वे हिंदी के ही नहीं बल्कि उर्दू के भी रचनाकार थे। उनकी रचना आज भी बहुत प्रासंगिक है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति, परिवारों के बारे में इनकी रचनाओं से हम बहुत अधिक समझ सकते हैं। मैं प्रेमचंद के बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। यहाँ अनेक दिग्गज व्यक्तियाँ हैं, वे उनके बारे में ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। मैं अपने कर्तव्य की ओर जाना चाहता हूँ। आज यहाँ हिंदी मंच का उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। इसके साथ सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद के लिए यहाँ आए हमारे प्रधान अध्यापक श्री उस्मान मनाटी साहब को मैं इस कार्यक्रम की ओर स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अशरफ आलुंगल सर हैं। वे इडुक्की जिले के अडिमाली GVHSS के प्रधानाध्यापक है और हिंदी कोर SRG भी है। उनको भी मैं सादर स्वागत करता हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद देने के लिए कुछ मेहमान आए हैं। श्री शशीन्द्रन और रवि, जशी, श्रीमती जशी S, वे सब हिंदी के SRG हैं। वे सबको इस कार्यक्रम की ओर मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे स्कूल से उप प्रधान अध्यापिका श्रीमती रसिया मैडम, स्कूल SRG के संयोजक अब्दुल्ला सर, स्टाफ सेक्रेटरी शरीफ सर, और सभी मंचों के स्कूल के सभी मंचों के संयोजक सबीर सर और अन्य हिंदी अध्यापकों को मैं इस कार्यक्रम की ओर स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष पद संभालने के लिए मैं हमारे प्रधान अध्यापक श्री उस्मान मनाटी उस्मान सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സുജീർ ബാബു സാർ, സൈലം ടീച്ചർ, സൈഫുദ്ദീൻ സാർ, നിയാസ് മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ ഹിന്ദി
ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനായ അഷ്റഫ് സാറ്, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന ശശീന്ദ്രൻ സാറ്, രവി സാറ്, ജെസ്സി മാഡം, അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ വർഷത്തെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ 30ഓളം ക്ലബ്ബുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കാറുമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും കലാകാലങ്ങളായി പരിശ്രമിച്ച് വരികയാണ്. അതിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്. ആ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് ഈ വർഷം ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. മറ്റുള്ള ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരാനിരിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടനത്തോടിന് ശേഷം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ക്ലബിന്റെ കീഴിൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ അവസരമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ 4 അധ്യാപകരെയാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലുള്ള സന്തോഷം തന്നെ ആദ്യം ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലുമൊക്കെ SRG ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലകളായിട്ട് വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർക്ക് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കാനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ സംഭാവന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ്. മേൽമുറി MMET HSK प्रधानाध्यापक श्री उस्मान मेणाटिल, आशीर्वाद भाषण देने वाले मेरे मित्र श्री शशिधरन जी, रेवी जी, जशी जी, सुजीर जी और इस मंच के संयोजक नियास जी और मंच पर मौजूद बाकी सारे मित्रों, मुझे सुनने वाले अध्यापकों, छात्र छात्राओं, आदरणीय अभिभावकों, सबका मेरा नमस्कार। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार प्रेमचंद के साहित्य एवं विचार 1906 से लेकर 30 सालों के भारतीय जनजीवन की पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रतिध्वनियां हैं। ये 30 साल प्रेमचंद युग हैं। जन्म के 141 वर्षों के बाद भी किसी साहित्यकार को याद करना खुद इनकी महानता का प्रमाण है। उनके 141वां जयंती समारोह के इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक या सामयिक अथवा समकालीन है। प्रेमचंद अपने समाज का अंग बनकर जीते थे, अतः इसकी पीड़ा से पीड़ित रहते थे और मुक्ति के लिए चटपटाते थे। उनके लिए साहित्य इसी मुक्ति के लिए संघर्ष का अस्त्र था। देश और समाज की जिंदगी से हटकर साहित्य का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। उनके लिए साहित्य एक गंभीर उत्तरदायित्व का नाम है। साहित्य उनके लिए देश सेवा है और देश का अर्थ है वहां के लोग और सुख दुख। उनकी धारणा है कि साहित्य लिखने वाले को निजी जिंदगी से नहीं, समाजी जिंदगी से सरोकार होता है। साहित्य के बारे में उनकी ये समझ बराबर
बनी रही। इसी वजह से जन्म के 141वां साल भी हम उनका स्मरण करते हैं। उनकी स्मृति में देश में ही नहीं दुनिया भर में कई कार्यक्रम चलते हैं। आज इस मौके पर MMETHS में आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा करते हुए मैं बहुत खुश हूं। इस समारोह के आयोजकों से मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसका अवसर प्रदान किया है। प्रेमचंद की स्मृति में नमन करते हुए मैं अपनी चंद बातें संपन्न कर रहा हूं। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और स्कूल प्रधानाध्यापक आदरणीय उस्मान मैनाटिल जी, कार्यक्रम के उद्घाटक केरल के प्रसिद्ध हिंदी संसाधक, पाठ्यपुस्तक समिति के सदस्य और GVHS अडिमाली के प्रधानाध्यापक और मेरे मित्र श्री अशरफ आलूंगल जी, आदरणीय सेवानिवृत्त हिंदी अध्यापक और विद्वान श्री AP शशीन्द्रन जी, हिंदी SR जी श्री जोशी जी, मेलमुरी METHS के अध्यापक V रसिया, अब्दुल्ला P, शरीफ N, शबीर P, सैनबा PC, सुजीर बाबू E, सैफुद्दीन TM, अकबर AT, सुबैर KP और छात्र नियाज के और अमल के और अन्य अध्यापक और मेरे प्यारे छात्रों, मैं ये जानकर बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि आप लोग प्रेमचंद जयंती के अवसर पर अपने स्कूल में हिंदी मंच का उद्घाटन कर रहे हैं और प्रेमचंद जयंती समारोह मना रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं स्कूल के अध्यापक बंधुओं को और विशेषकर वहाँ के हिंदी अध्यापक सुजीर बाबू जी से मैं बहुत आभार हूँ। इस अवसर पर मैं हिंदी के मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास कहानी सम्राट के रूप में विख्यात है, क्योंकि उन्होंने करीब 11 उपन्यास लिखे थे और उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, करबला, निर्मला, गबन आदि उनके अच्छे प्रसिद्ध उपन्यासों में है। और इसके साथ ही उन्होंने करीब 280 कहानियां लिखी थी। ये सारी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। उनके कहानियों और अन्य रचनाओं के माध्यम से वे सामाजिक परिवर्तन में बड़ा प्रयास कर रहे थे और उनके जन्म से लेकर उनका जीवन ऐसा था कि संघर्षों में बीता था। जन्म के कुछ सालों के बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। फिर पिताजी ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी में जो सौतेली माँ उन्हें मिली वे उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी और बाद में पिताजी का भी देहांत हो गया और पूरे परिवार का दायित्व उनके कंधों में आ गया था। पिताजी ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था, तो जिंदगी भर में उन्हें कष्टदाएं सहनी पड़ी थी। करीब 8 मील दूर पैदल चलकर ही उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। फिर पढ़ाई बंद हो गई और अपनी ओर से स्वप्रयत्न से ही उन्होंने पढ़ाई करके ऊंचे पद पर पहुंचे। शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक वे पहुंच गए थे। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में भारत के अधिकांश राष्ट्रप्रेमी अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे, सरकारी कार्य या ब्रिटिश सरकार के विभिन्न बातें छोड़ रहे थे, उससे असहयोग दे रहे थे, तब प्रेमचंद ने भी अपना ये काम छोड़ दिया था, नौकरी से इस्तीफा दे दी थी।
तो उन्होंने अपने सारे किताबों को यानी अपने सारी रचनाओं को जल्दी से जल्दी प्रकाशित करके उसे क्या है ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्हें सभी पाठकों तक ये सारी बातें पहुंचाने में उन्हें क्या है आर्थिक तंगी बड़ी कठिनाई दे रही थी। और इसी प्रकार उन्होंने अपने रचनाओं को अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए सिनेमा का माध्यम अपनाने का भी प्रयास किया था। लेकिन सिनेमा के क्षेत्र में बम्बई जाकर उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में विख्यात लोगों से उनका परिचय हुआ था और इसी प्रकार अपनी रचनाओं से फिल्में बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया। इस प्रकार 2-3 फिल्में बनाई गई थी, लेकिन ये क्षेत्र भी उन्हें उतना अच्छा नहीं लगा, उनके लिए सहायक नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था। और उनके उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हम गोदान मान सकते हैं। गोदान को भारतीय किसान का महाकाव्य बताया जाता है। इसमें हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु होती है। और वे अपने को कलम का सिपाही मानते थे। कलम का सिपाही मानने का मतलब है वे ऐसा मानते थे कि जब तक मैं न लिखूं तब तक मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है, ऐसा आप विश्वास करते थे। इसलिए आप अधिकाधिक काम करने के लिए अपनी रचनाओं को जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचाने के लिए आप बड़ा प्रयास कर रहे थे। तो ये इस विशेष अवसर पर इस विख्यात साहित्यकार प्रेमचंद जी के जयंती समारोह में आप लोग बड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और इसी अवसर पर आपके स्कूल में हिंदी मंच का उद्घाटन हो रहा है। मैं ऐसे ही कामना करता हूं कि आपके स्कूल का हिंदी मंच बहुत से अच्छे कार्य करने में सफल रहे। और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं यहाँ के अध्यापकों को, विशेषकर सुजीत बाबू जी को मैं अपना आभारी व्यक्त करता हूँ। और इस विशेष कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार के आशीर्वाद देते हुए और सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना ये छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। मलप्पुरम मेलमुरी MMET HSS के प्रधान अध्यापक जी, अध्यापक बंधुओं, मुख्य अतिथि आदरणीय मोहम्मद अशरफ आलुंगल जी, DRG जशी जी, अन्य अतिथियों, अभिभावकों, प्रिय छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती है। आज से 141 साल पहले काशी के पास लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे। उन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकांता के गर्त से निकालकर सुदृढ़ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया। बंकिम बाबू तथा अंग्रेजी उपन्यासों की मांग को तो उन्होंने बिल्कुल ही रोक दिया। हिंदी साहित्य के उस विशेष क्षेत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के अनुवादों का लोकप्रिय होना तो संभव न था। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने समाज के असाधारण वर्गों की ओर से दृष्टि हटाकर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति की समस्याओं की ओर हिंदी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। किसान, मजदूर, क्लर्क, दुकानदार, जमींदार, साहूकार, अफसर और पूंजीपतियों से संघर्ष का जैसे जीवित रूप में प्रेमचंद जी ने चित्रण किया है, वैसा उनसे पहले हिंदी साहित्य में कभी नहीं हुआ था। प्रेमचंद के पदार्पण के पूर्व तक हिंदी उपन्यास मानो किसी अविकसित कलिका की भांति मौन, निस्पंद एवं चेतनाहीन सा हो रहा था। दिवाकर की प्रथम रश्मियों की भांति प्रेमचंद की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वो जग उड़ा, खिल उड़ा और मुस्कुराने लगा। राजा रानियों और सेठानियों के महलों की चार दीवारी में बंद रखने वाला कथानक जनसाधारण की लोकभूमि में उन्मुक्त रूप से विचरण करने लगा। लोह मूर्तियों की भांति स्थिर रखने वाले या कठपुतलियों की भांति लेखकों के मौन संकेतों पर अस्वाभाविक गति से
दौड़ने कूदने वाले पात्र मांसल सजीव और व्यक्तित्व संपन्न होकर सामान्य मनुष्यों के रूप में आत्म प्रेरणा से परिचालित होते दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने केवल सस्ते मनोरंजन के स्थान पर जीवन की ज्वलंत समस्याओं को अपनी कला का लक्ष्य बनाया। यही कारण है कि उनके प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी सामयिक समस्या का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। जैसे सेवा सदन में वेश्याओं की, रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों की, प्रेमाश्रम में किसानों की, कर्मभूमि में हरिजनों की, निर्मला में दहेज और वृद्ध विवाह की, गबन में मध्यवर्ग की आर्थिक विषमता की और गोदान में पुनः किसान मजदूर के शोषण की। प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानियों की संख्या 300 से अधिक है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। उनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े खर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, अल्पयोचा, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भगत, पंडित मोटेराम, खपन आदि अधिक विख्यात हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जनसाधारण के जीवन की सामान्य परिस्थितियों, मनोवृत्तियों एवं समस्याओं का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ। वे साधारण से साधारण बात को भी मर्मस्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने की कला में सिद्धहस्त थे। धन्यवाद। സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയായിരുന്നു ഹിന്ദി. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണെങ്കിൽ കൂടി പല നാടുകളിലും പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവരുടെയൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് പുറകിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാനും അതുമാത്രവുമല്ല ഹിന്ദി എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സകലവിധ മംഗളാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, MMT ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഹിന്ദി ക്ലബിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനവും പ്രേംചന്ദ് ദിന ആചരണവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഏതായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം MMTയിലെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും സജീവമാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേംചന്ദ് ദിനത്തിന്റെ ആചാര ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മഹത്തായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് നടത്താറുള്ളത്. ക്ലബിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രേംചന്ദ് ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേംചന്ദ് കഥാകാരൻ, ഇന്ത്യയിൽ 100 കണക്കിന് കഥകൾ എഴുതി അറിയപ്പെട്ട ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തിയ ഒരു ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരനാണ്. മാത്രമല്ല ഉറുദുവിലും അറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനാണ് പ്രേംചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനാചരണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ, കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഹിന്ദി ക്ലബിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. पूजनीय अशरफ जी, हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री उस्मान सर, त्रिशूर जिला के हिंदी SRG श्री शशिधरन सर, कन्नूर जिला के हिंदी SRG श्री देवी सर, पालक्काड जिला के हिंदी SRG श्रीमती जशी मैडम,
मेरे प्रिय अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सबको नमस्कार। आज जुलाई 31 हम सबको पता है प्रेमचंद दिन है। इसी सिलसिले में हमारे स्कूल में कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं प्रेमचंद के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। हिंदी उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक था प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट के रूप में माना जाता है। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण है। उनकी रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में व्यापृत हुई है। बहुमुखी संपन्न प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, लेख, समीक्षा, संपादकी, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। प्रमुखतया उनकी ख्याति कहानीकार के रूप में होते हैं और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि सम्मानित हुए हैं। ऐसे प्रेमचंद के बारे में कहें तो बहुत अधिक है। हमारे वरिष्ठ अध्यापकों ने अच्छे ढंग से आपको समझाया है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। आज हमारे स्कूल में प्रेमचंद दिन के इस सिलसिले के साथ हिंदी मंच का उद्घाटन भी चले हो जा रहा है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि इस सुअवसर पर आप सब स्कूल में आकर इसमें भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन हम क्या करें, कोविड होने के नाते हमारे घर से बाहर न जा सका। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने अपने घर में बैठकर ऑनलाइन में जो प्रतियोगिताएं चले जा रहा है उसमें भाग लीजिए। इतना कहकर मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं अपने वरिष्ठ मेहमानों को कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। हिंदी के कोर एसआरजी तथा अब इടുക്കി जिले के अडिमाली के GVHS देवियार कॉलोनी के स्कूल के प्रधान अध्यापक और हिंदी के कोर एसआरजी श्री अशरफ आलुंगल सर और सेवानिवृत्त हिंदी अध्यापक और हिंदी का एसआरजी त्रिशूर जिला के हिंदी एसआरजी श्री शशिधरन सर, कन्नूर जिला के हिंदी एसआरजी श्री रवि सर और पालक्काड जिला के हिंदी एसआरजी श्रीमती जशी मैडम, सबको इस अवसर पर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी प्रकार हमारे इस विशेष कार्यक्रम को सभी प्रकार का आशीर्वाद देते हुए सभी को शुभकामनाएं देकर अपना छोटा भाषण समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री उस्मान मैनाटिल, हमारे प्रधान अध्यापक उद्घाटक श्री अशरफ आलुंगल, मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। आज 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती है। इस दिन के सिलसिले में हमारा हिंदी मंच का उद्घाटन भी चल रहा है। इसमें मेरा कर्तव्य बधाइयाँ देना हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम के लिए मेरी हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापक उस्मान साहब, उद्घाटक अशरफ साहब और अन्य अध्यापक लोगों और मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रेमचंद दिवस मना रहे हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास मुझे अच्छे लग रहे हैं। बच्चों, उनकी कहानियाँ ज़रूर पढ़ना है। इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। माननीय
प्रियकर प्रधानाध्यापक, अतिथिगण, शिक्षकगण तथा यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों, मैं अमल के 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। प्रेमचंद जी आधुनिक हिंदी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। वे हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों से एक थे। ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे स्कूल में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें से एक हिंदी मंच उद्घाटन भी हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानाध्यापक GVHSS अडिमाली हिंदी कोर SRG अध्यापक श्री अशरफ आलुंगल जी ने किया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हिंदी मंच संयोजक अध्यापक श्री नियाज जी, प्रधानाध्यापक MMT HSS मेलमोरी अध्यापक श्री उस्मान मेनाटिल जी, हिंदी SRG त्रिशूर अध्यापक श्री शशिधरन जी, हिंदी SRG कन्नौज अध्यापक श्री रवि जी, हिंदी SRG पालक्काड अध्यापिका श्रीमती जयश्री जी, उप प्रधानाध्यापक MMT HSS मेलमोरी अध्यापक श्रीमती रसिया जी, SRG संयोजक MMT अध्यापक श्री अब्दुल्ला जी, कर्मचारी सचिव MMT अध्यापक श्री शरीफ जी, मंच संयोजक MMT अध्यापक श्री शबीर जी, हिंदी अध्यापिका श्रीमती सैनबा जी, हिंदी अध्यापक श्री सुधीर बाबू जी, हिंदी अध्यापक श्री सैफुद्दीन जी, हिंदी अध्यापक श्री अकबर जी, हिंदी अध्यापक श्री सुबैर जी, आप सभी मान्यवरों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई, साथ ही अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया। आपके ये अमूल्य मार्गदर्शक ने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। मैं फिर से हिंदी मंच MMT HSS मेलमोरी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद।